Here, last day. Yes, sir. Okay, so I told you about how to evaluate the leap year, and if this is the ordinary leap year, you will have to find out using remainder year divided by 4 and getting the remainder, but it should not be divisible by 100. Divisible by 100 means year dividing by 100, and if you get 0 as remainder, then it is not possible that this is a leap year. And for this kind of leap year where uh, you can divide the year by 100, it means this is the century year. So for the century year, you will have to divide the year by 400, and after dividing the year by 400, you will get 0, and if you get 0 as remainder, then this is a leap year. So here this is a program. So program is very easy for you. Like if I enter a month name, 3 letters month name, say I Excuse enter me, sir. okay beta bolo. Yes beta bolo. सर यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस में क्यों दिया है ये कमांड इफ के लिए? कहाँ दिया है? पैरेंथेसिस तो केवल इनपुट के लिए है. सर इन द सेकंड द फैब नो सर फैब वाले में हमने इफ जब यूज किया है तो उसके बाद पैरेंथेसिस में कमांड दिया है ना, y मॉड्यूलो 4 इज इक्वल्स टू हाँ 0 एंड y उस मॉड्यूलो 100 इज नॉट इक्वल्स टू 0. okay. I'm telling you because we are combining two conditions here, one for ordinary leap year and other for century leap year. So we have two conditions that it should be divisible by 0, and उसके साथ साथ in addition to this condition it should not be divisible by 100, and that is why we have put this entire condition, these two conditions combining with and in one parenthesis, and see other is free from parenthesis. इसको मैंने एक बनाने के लिए parenthesis कर दिया है. क्लियर? अगर आप इसको हटा के भी करेंगे तो भी होपफुली ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको और इसको, बिकॉज दिस इज ऑर्डिनरी लीप ईयर, दैट इज वाई कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए हमने इसको फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी वी हैव टेकन पैरेंथेसिस. ये दोनों कंडीशन एक साथ चेक होनी चाहिए, एंड ये या तो ये पूरा एक चेक होगा या ये पूरा एक चेक होगा, इसलिए मैंने इसको इसमें लिख लिया. अदरवाइज पैरेंथेसिस की जरूरत बहुत कम पड़ती है. जब कंबाइन कर रहे होते हैं तभी हमें जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज नहीं पड़ेगी. इज दैट ओके? एंड सर डिविजिबल साइन? डिविजिबल साइन ये रहा ना, मॉडलो. सर डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि अगर ईयर 4 से फुल्ली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए. नो सर, नॉट दिस वन. हाँ, Not this one, sir. Sir, after the parenthesis. ये दिस वन. Sir, slash. Yes, sir. So this is the continuation in the next line. You can delete it and you can write the Okay, sir. entire Okay, line sir. in one line, one row. Since these two statements are Okay, here, sir. है ना, इसको continuation के लिए लिखा है. So if this condition, either this condition is satisfied or this condition is satisfied, then number of days will be 29, otherwise number of days will be 28. Hope this is clear. Okay, sir. Now it is clear. Okay. And any other student who could not understand, आप free होके पूछ सकते हैं. So see the example. Type in caps. This is just because of this line. Simple print statement. Here month 3 letters. This is just because of this prompt, which is along with input. So as soon as this statement is encountered, the cursor will wait for you to give the data. तो जैसे ही आप डेटा देते हैं, ये 3 letters word देते हैं, which will be stored in M. Then after taking the value of month, it will go to
to check. If the month is Jan, obviously number of days are 31, and if the month is Feb, then we have to take the year also. क्योंकि जो फैब है, फैब के केस में जो मतलब कह सकते हैं कि तो प्रॉब्लम इज कि ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो वो ईयर आपके पास होगा तभी तो पता कर पाएंगे ना। इसलिए हमने यहाँ पर ये एक चीज चेक की है. सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, then number of days are 31, and if this condition can also this condition can be true only when this condition is satisfied, यानी ईयर आपकी लीप ईयर है. सो इफ दिस इज लीप ईयर तो नंबर ऑफ डेज आर 29. यानी सारी कंडीशंस में से केवल एक ही कंडीशन जो है ट्रू हो सकती है. एंड फ्रॉम if until this else, दिस ओनली वन स्टेटमेंट. यहां से लेकर के और यहां तक ये सब पूरा स्टेटमेंट एक ही है. यानी जैसे ही यहां से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू होने के बाद सीधा वो यहां पहुंच जाएगा प्रिंट डेज पे. इस चीज का बस ध्यान रखिए, या तो जैन होगा या फैब होगा या मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, यानी 12 मंथ्स के अलावा कोई और मंथ तो हो नहीं सकता. अगर कोई और मंथ आप देने की कोशिश करते हैं, देन वो एल्स में आकर के बता देगा दिस इज द रॉन्ग इनपुट, एंड नंबर ऑफ डेज उसके क्या हो जाएंगे, 0. सो व्हेन यू गिव द आउटपुट लाइक टाइप कैप्स, मैं आपको अगर मंथ देना है तो आई हैव गिवन फैब, तो मैंने फैब दे दिया. फैब का मतलब ये है कि आई विल हैव टू इनपुट ईयर ऑल्सो. सो इट विल आस्क ईयर, व्हाट इज द ईयर, and I have entered 2100. Since 2100 is there, and when you divide it by this y divided by 4, it will give you 0 definitely, because 2100 is divisible by 4. But here जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा, लेकिन वो 100 से डिविजिबल नहीं होगा. तो ऐसे केस में वो लीप ईयर नहीं बन पाएगा. लीप ईयर होने के लिए यानी ये 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. अगर 4 से डिवाइड और रिमाइंडर 0 आया था तो फिर वो देखना पड़ेगा क्या वो 100 से भी डिविजिबल है, उससे भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए. So if this is the ordinary leap year, then it should be divisible by 4 only, not by 100 as well. दोनों से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, तभी वो ordinary leap year हो सकता है. And here, if this is leap year, like this is 2100, and if I would have given 2000 here, 2000 is divisible by 400, and that is why 2000 का जो ईयर था, जो फैब ईयर था, वो फैब मंथ था, दैट वाज द लीप ईयर. ओके, केवल यहाँ पर जो टपोरी वर्ड्स, तो लोचा जो था वो यही यहाँ पर ये है. अगर ये इस तरीके से हमें ये चेक करना पड़ेगा, दिस इज ओनली लोचा, और कुछ नहीं है, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है. एंड अंटिल दिस यू नो वेरी वेल. बाकी सारे मंथ्स के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं. इफ दिस इज मार्च, दिस इज मे, व्हाट शुड बी नंबर ऑफ डेज, एंड ओके. सो बट यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि दिस प्रोग्राम इज लॉन्ग एनफ, लेंथी एनफ, because for every month we are giving a statement. If m is equal to jan, नहीं है. if m is equal to fab, नहीं है. if m is equal to march, नहीं है. if m is equal to april, नहीं है. if m is equal, तो जितने भी मंथ्स हैं सबके लिए हमें elif लगा करके ये पता करना पड़ेगा क्या वो इनमें से कोई है. ओके, सो इनमें से कोई भी नहीं है. Yes, sir. तो यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को इतना लेंदी कर दिया. इस प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं in the next slide. So in the next slide, this is the program. See here. इसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं, लास्ट में बैक स्लैश लगा हुआ है. इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा एक ही है, यहां से लेके यहां तक एक ही लाइन है, क्योंकि लाइन के एंड में आपको कॉलम देना था.
तो इसका मतलब ये है m इज इक्वल टू जैन और m इज इक्वल टू मार्च और m इज इक्वल टू मई और m इज इक्वल टू जुलाई और m इज इक्वल टू अगस्त और m इज इक्वल टू अक्टूबर और m इज इक्वल टू दिसंबर, देन कोलन। अगर इनमें से कोई भी है, बिकॉज और लगा हुआ है, either this or this or this or this or this or this or this, then number of days are 31. अगर इनमें से कोई भी नहीं है, then you'll come to this place alif. If this is fab, then enter year and find out whether this is leap year. If this is not leap year, then number of days are 20, 28, otherwise 29. And if fab is not there, then check whether this is April or June or Sep or November. If any month out of these 4 months, then number of days will be 30. So जो प्रोग्राम आपने पीछे वाली लाइन में स्लाइड में देखा था, जो इतना लंबा हो रहा था, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिफ्स आर वेरी लेस. Here there are only 2 alifs, where on this slide number of alifs are, see, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 alifs are there. So it depends how precisely you put alif. So both are the same programs. पता रहेगा कि Okay, sir. we are going on right track. So this was the program. Okay, वो तो अभी presentation start भी नहीं हुआ. Wait. Actually what happens when बीच में कोई भी जर्क आता है ना, चाहे वो लाइट का हो या फिर नेट का हो, तो कम से कम 15 मिनट निकल जाता है उसको सिंक्रोनाइज करने में, वापस लेने में. यानी मॉर्निंग असेंबली 8:45 की है, मुझे अपना सिस्टम स्टार्ट कर देना होता है 8:45 तक. सारा सिस्टम स्टार्ट करके 8:45 पर रखता हूँ, और उस बीच में अचानक से जो है नेट चला जाए, तो आप सोचो मेरी क्या हालत होगी. इससे वेल इन एडवांस मैं अपना सिस्टम स्टार्ट करके काम करना शुरू करता हूँ. एनीवेज, चलिए इसे ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको प्रोग्राम करने की कोशिश करिएगा, फिर मुझे बताइएगा. ओके. और उसके बाद जो इसका जो सॉल्व स्लाइड है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा बिकॉज इससे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को. ये प्रोग्राम भी है, इस प्रोग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि आपको जब जब आप रन करें, सपोज फर्स्ट टाइम आपने रन किया, आपने दिया 23 34 45, इस तरीके से ए की वैल्यू 34, बी की वैल्यू 45 एंड सी की वैल्यू 23. तो वो जो है आउटपुट आपका असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, ऐसे 23 34 45. अगर आप सेट देते हैं 78 41 एंड 18, इट शुड कम लाइक 18 41 78. अगर आप वैल्यूज देते हैं 59 14 एंड 35, इट शुड कम लाइक 14 35 59. और अगर आप सेट देते हैं ये वाला where a is 94, b is 45 and c is 12, so it should come 12 45 and 94 in ascending order. So this is up to you, और आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा. 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ, और आप जब कर लेंगे और नहीं कर पाएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको. ओके, नेक्स्ट. Yes, sir. ये इसका सॉल्यूशन है, बट आई एम नॉट शोइंग द सॉल्यूशन टू यू बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले आप करें, उसके बाद नेक्स्ट ये है आपका 4 के लिए रीअरेंजमेंट, 4 वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पर मैंने 4 वैल्यूज ली हैं 1 2 एंड 3 4, और उसके बाद हमने चेक किए हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराया है. तो कैसे करना है वो आप चेक करो.
मैं केवल इस स्लाइड पे आ रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से। ये थोड़ा सा बूलियन ऑपरेशंस के बारे में है। तो डेलिबरेटली आई स्टॉप माई सेल्फ हियर कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स है तो उस केस में क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं आपको यहां बता दूं, इफ वन कंडीशन इज ट्रू बट अदर इज फॉल्स, यानी वन इज ट्रू एंड दूसरी फॉल्स है, ऐसे केस में जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू एंड फॉल्स में से फॉल्स आएगा। सो सी हियर, ये तो आप प्रिंट हो गया, ट्रू एंड फॉल्स प्रिंट हो गया, एंड इसका रिजल्ट जो है इससे आया ट्रू एंड फॉल्स से आया, तो ये आएगा फॉल्स। नीचे अगर एक वैल्यू ट्रू है दूसरी वैल्यू फॉल्स है, बीच में और लगा हुआ है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है या सारी ट्रू होती हैं तो रिजल्ट आपका ट्रू ही आएगा। तो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। सो ट्रू इज हियर। 1 एंड 0 में से 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो 1 एंड 0 में आउटपुट आपको मिलेगा फॉल्स, तो इट विल गिव यू 0 हियर। तो दिस इज 0। एंड इन सेकेंड केस 0 एंड 1 में कोई भी वैल्यू अगर 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 0 ही होगा, यानी फॉल्स एंड ट्रू में हमेशा फॉल्स होगा। और अगर आप दोनों ही ट्रू देखते हैं तो भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सो 1 0 फॉल्स एंड 0 1 इज ऑल्सो फॉल्स। देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर भी है और 0 यहाँ पर है। 1 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज ऑल्सो 0। एंड इन आवर केस 1 और 0 इज 1 डेफिनेटली। देख लीजिए 1 और 0 is 1 and 0 or 1 is also 1. So 0 or 1 is also 1. And Clear? if both are false? Sorry? And if both are false? Obviously false. False केस में ट्रू तो होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, जब सारे के सारे फॉल्स है तो ट्रू होने का तो मतलब ही नहीं आता, और जब सारे के सारे ट्रू है तो एंड केस में फॉल्स का मतलब नहीं आता। ओके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको थोड़ा टेंशन होगा। टेंशन कैसा है, जब जैसा कि मैंने बोला था, एनी नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू होती है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसकी वैल्यू ट्रू होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा जहां पर आप थोड़ा सा घूम जाएंगे। ये यानी ये तो सारी वैल्यू जो है ट्रू ही है। 23 नॉन जीरो, 12 इज नॉन जीरो, तो व्हाट शुड कम हियर। ऐसे केसेस में जब एंड लगा हुआ है और सारी ही वैल्यू जो हैं नॉन जीरो हैं, तो एंड लगा है, तो एंड के केस में क्या होता है कि सेकेंड वैल्यू इज द आउटपुट, दैट इज 12। तो देखिए 23 एंड 12 आउटपुट सेकेंड वैल्यू। सेम हियर 12 and 23 both are non-zero value, but output is second value, that is 23. So this is the output. But in case of or, चाहे कैसी भी वैल्यूज हों, नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो वो ट्रू ही होनी चाहिए। बट जब आप देखते हैं कि बिगर वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू है, तो अगर आप और यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू इज द आंसर, फर्स्ट वैल्यू इज द आउटपुट। सो 23 और 12 it will give you 23. Similarly 12 और 23, so यहाँ पर first value क्या है 12, so it will give you 12. So in case of or, when there are non-zero values, output will be the first value, and in the case of and the values are non-zero, then the output will be the second value. देख लीजिए दोनों में से, दोनों को गौर से देखिएगा और उसके हिसाब से फिर ये आउटपुट देखिएगा और उसको करके भी देखिएगा। सेम हियर, अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस जो है ये नॉन जीरो वैल्यूज ही हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है
एंड का केस है तो सूरज आएगा, और यहाँ और का केस है तो जमर आएगा. सो सी सूरज एंड जमर. सेम हियर 90 and 91, so output will be, this is the I mean AND case, so output will be the second value. So 91 is printed, and 1 और 0 इसके अंदर आपको लेना पड़ेगा फर्स्ट वैल्यू. हियर सेकेंड वैल्यू, इन और केस द फर्स्ट वैल्यू. बट अब यहां पे देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा चक्कर लगेगा. -1 इज नॉन जीरो वैल्यू, तो बुलियन के हिसाब से दिस इज ट्रू. बट आप चेक कर रहे हैं प्रिंट ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो यहां पर क्या आने वाला है? फॉल्स. अब ये जो है सबसे बड़ी क्वेरी है, बिकॉज अगर ट्रू देखा जाए, हमने जो है दो नंबर्स में से ग्रेटर फाइंड आउट किया था,